Once upon a time, many thousands of years ago, the king of the Bharat ruled a land that was now known as India. From his capital of Hastinapur, now placed about 100 kilometers northeast of today Delhi. In Meerut district, Uttar Pradesh, this king had two sons. The older one, Dhritarashtra, should rightfully have been king after his father passed, but he was blind, which automatically disqualified him from kingship. Thus did the younger son, pale and sickly Pandu, would never otherwise have had a chance to rule, get his lucky break, and become king. In fact, there were three brothers. The third brother was Vidur, but he was Dasi Putra, so he could not be considered for the kingship post. However, Pandu's happiness was short-lived. A venerable sage whom he had unintentionally annoyed laid on him a terrible curse that he should never be able to have children. A king who cannot produce an heir is a completely pointless king. Though Pandu sadly to himself, he gave up the throne and went off to the forest with his two wives, Kunti and Madri. Blind Dhritarashtra became the caretaker king, ruling the kingdom in his brother's name. Overall, Dhritarashtra was well pleased with the way things had gone for him. As he saw it, he was not so much taking care of the kingdom for his brother as he was keeping it safe for the sons he was going to have if things were to plan that sickly, childless brother of his would pass on one day soon, and then no force on earth would be able to stop his sons from rightfully claiming the throne of Hastinapur for themselves. In mythology, however, as in life, things have a way of not going to plan. Pandu would never be able to have children, but in a brilliant mythological loophole, his elder wife Kunti could. How come? Well, Kunti had been taught a mantra by a venerable sage, not the same one who caused her husband. There were hundreds of venerable sages wandering around the forest of India then. If she chanted the mantra with great devotion while focusing on any god of her choice, that god would come down to earth and give her a son. Yeah, that's simple. तो कुंती ने अपने मंत्रों के द्वारा तीन देवताओं की आराधना की, जिसके की द्वारा उनको तीन पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम पैदा हुए। उसी प्रकार से माद्री ने भी अश्विनी कुमारों की आराधना की और उनके दो पुत्र नकुल और सहदेव हुए। इस तरह से 5 पुत्र पांडवों के हो गए और 100 पुत्र और एक पुत्री कौरव के, धृतराष्ट्र के हो गई। एक परिवार की संरचना में ये दो भाई का परिवार था, लेकिन उनके अंदर वैमनस्यता इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो एक दूसरे को नीचा दिखाने का हमेशा प्रयास करते थे। जैसा कि आज के भी समाज में, आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो संयुक्त परिवारों का विघटन बहुत ज्यादा हो रहा है। आजकल संयुक्त परिवारों की कल्पना ही एक मृग मरीचिका जैसी हो गई है। पहले के जमाने में, आज से कहिए 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले भारत में संयुक्त परिवार हुआ करते थे, जिसमें कि 2-3 भाइयों के परिवार के बच्चे आपस में मिलजुल के रहते थे
और उनके अंदर बड़ा ही प्यार, सद्भाव, सौहार्द हुआ करता था। और लड़ाई झगड़ा होने के बावजूद परिवार की एक परिकल्पना थी। परिवार में संयुक्त रूप से भोजन का निर्माण होता था। परिवार की सारी स्त्रियां मेल जोल करके कोई भोजन निर्माण करती थी, कोई गृह कार्य के अन्य कार्य करती थी, कोई बच्चों को संभालते थे। पुरुष वर्ग भी आर्थिक कारणों से नौकरी करते थे, गृहस्थ का काम करते थे, कृषि का काम करते थे, व्यवसाय का काम करते थे। और करीब 20-25 लोगों का परिवार बड़े ही सौहार्दमय ढंग से रहता था। आज उस पारिवारिक विघटन के कारणों पर अगर हम जाएं तो उसके बीज महाभारत काल में ही देखने को मिल जाते थे, जो कि उस समय के हस्तिनापुर राज्य के परिवार थे, जो कि 105 बच्चों की शिक्षा दीक्षा गुरु कृपाचार्य और गुरु द्रोणाचार्य के संरक्षण में होती थी। गुरु कृपाचार्य कुल गुरु थे, तो कुल की परंपरा इत्यादि का ध्यान वो देते थे, यानी शास्त्र की शिक्षा। और गुरु द्रोणाचार्य जो कि गुरु कृपाचार्य के ही बहनोई थे, ब्रदर इन लॉ थे। कृपाचार्य की बहन कृपी की शादी गुरु द्रोणाचार्य से हुई थी। और महाभारत के युद्ध के पीछे की अगर घटनाओं को हम गौर करें तो गुरु द्रोणाचार्य की एक महत्वाकांक्षा इस युद्ध की एक कारणों में आती है। इसके बारे में बताया जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य का जो मूल निवास था वो आज के देहरादून के पास में था, और वहां वे अपना कुटिया निर्माण करके अपनी पत्नी कृपी और पुत्र अश्वत्थामा के साथ रहते थे। एक दिन अश्वत्थामा ने दूध पीने का जिद किया, गाय का दूध उसको चाहिए था, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य के पास न गाय थी, न कोई ऐसे संसाधन थे, और वे उनके पास रोजगार नहीं था, तो उसमें अक्षम थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि इसको चावल पीस करके पिला दो, दूध के समान बनाकर। ऐसा ही किया गया, लेकिन उनके मन में एक बड़ी ही वितृष्णा सी हो गई कि क्या मैं अपने पुत्र को गाय का दूध नहीं दे सकता। इस बात से परेशान होके उन्होंने उस समय के अपने बालपन में जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो द्रुपद नरेश, राजा द्रुपद के साथ उनका शिक्षा हुआ था और उनकी उनसे दोस्ती भी थी। तो द्रुपद नरेश के दरबार में वो गए और उन्होंने उनको पुराना वचन दिया था द्रुपद ने कि जब मैं राजा होऊंगा तो आधा राज तुम्हें दे दूंगा। इस अभिलाषा से गए कि आज द्रुपद से मैं कुछ राजपाट मांगूंगा। तो पहले तो द्रुपद ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया, और बाद में उनको कहा कौन सा मित्र, कैसा मित्र, सारी बातों का संज्ञान लेने का उन्होंने प्रयास किया, उसको याद दिलाया, लेकिन उसने उनकी बिल्कुल न सुनी, एक तरह से उनका अपमान किया। अंत में उन्होंने कहा चलो राजपाट छोड़ो, एक गाय ही दे दो। उसने गाय देने से भी मना कर दिया, कहा कि तुम भिखारी की तरह आए हुए मेरा मित्र बनकर मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। उनके अंदर प्रतिशोध की भावना बहुत ज्यादा हो गई थी द्रोणाचार्य जी के अंदर में, और वो चाहते थे कि किसी तरह से हमें कोई राजकीय कार्य मिल जाए, बेरोजगारी दूर हो। तो रोजगार की खोज में अपने साले कृपाचार्य के पास गए कि आप तो राज दरबार में हैं, इतने बड़े राज दरबार में मेरे को नौकरी दिलवाइए। तो कृपाचार्य ने उनको यही कहा कि मैं कोई रिकमेंडेशन की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन अगर आप प्रयास करें तो भीष्म पितामह अगर प्रभावित होते हैं तो खुद आपको चयन कर लेंगे, क्योंकि बालकों की शिक्षा दीक्षा के लिए
उनके मन में कोई एक योग्य गुरु की तलाश है। तो गुरु द्रोणाचार्य इस फिराक में थे कि कैसे भीष्म पितामह तक पहुंचा जाए। तो जिधर बच्चे खेल रहे होते थे उधर ही वो मंडराते रहते थे। एक दिन की बात है कि बालकों का कंदुक बाल वो कुएं में गिर गया और बालक बड़े परेशान हो गए थे, उसको कैसे निकाला जाए। उसी दौरान गुरु द्रोणाचार्य की निगाह उन बच्चों पे पड़ी और उन्होंने कहा कि मैं इसको बिना रस्सी के और बिना किसी सहायता के तीर द्वारा अपने बाण से तीरों की एक रस्सी नुमा बाण बना के मैं निकाल सकता हूं। तो बालकों ने कहा निकालिए। तो उन्होंने एक तिनके को तीर बना के उसी की रस्सी बना के और बाण को जो है तीर से संधान करके निकाल दिया। उनकी इस कला से बच्चे बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने जाके ये बात गुरु भीष्म पितामह को बताई। भीष्म पितामह जी जान गए कि यह कार्य या तो परशुराम जी कर सकते हैं या द्रोणाचार्य जी कर सकते हैं। तो उन्होंने पता किया कि कौन था, तो पता चला द्रोणाचार्य जी थे। तो द्रोणाचार्य जी को राज दरबार में बुलाया गया और उनकी नियुक्ति 105 बच्चों की शस्त्र शिक्षा के लिए कर दी गई। अब वो राज दरबार में बाकायदा गुरुकुल बना करके उसके गुरु नियुक्त कर दिए गए शस्त्र शिक्षा के लिए। और जब बच्चे शिक्षा प्राप्त कर लिए, बड़े हो गए, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में कहा कि मुझे द्रुपद नरेश के रूप में बंदी बनाकर लाओ, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। तो पहले चांस लेने के चक्कर में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन गए, कर्ण के साथ भी गए और उनको द्रुपद की सेना ने परास्त कर दिया। फिर बाद में अर्जुन ने कहा कि मेरे को अवसर मिले। अर्जुन गए और उन्होंने द्रुपद को बांध करके उनको परास्त करके गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में लाके पटक दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा द्रुपद तुम तो बहुत बड़े राजा हो, लेकिन आज मेरे चरणों में गिरे हुए हो। द्रोणाचार्य के इस प्रतिशोध की आग में द्रुपद पड़े थे और उन्होंने हाथ जोड़ करके शरणागत होने का भाव जाहिर किया। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा कि द्रुपद आधा राज तुम्हारा और आधा राज हमारा, तुमने ही तो वादा किया था। फिर द्रोणाचार्य जी आधा के राज्य के स्वामी बन गए और उन्होंने अपने शिष्य अर्जुन को श्रेष्ठ शिष्य होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन उधर द्रुपद के मन में प्रतिशोध की भावना बड़े प्रबल रूप में घर कर गई और उसकी पुत्री थी द्रौपदी और उसका पुत्र था धृष्टद्युम्न। इतनी ज्यादा प्रतिशोध उसके मन में था कि उसने धृष्टद्युम्न से वादा कराया था कि गुरु द्रोणाचार्य का जो है सिर कलम करना है, इस अपमान और प्रतिशोध का बदला लेने के लिए। तो महाभारत की कहानी का बीज गुरु द्रोणाचार्य की महत्वाकांक्षा और द्रुपद द्वारा गुरु द्रोणाचार्य का अपमान करना और गुरु द्रोणाचार्य द्वारा द्रुपद से प्रतिशोध लेना, इन घटनाओं के कारण भी पड़ चुका था। तो कारण नंबर 1 ये था। कारण नंबर 2, जब युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ की तैयारी हो रही थी या हो चुका था, तो उसमें ऐसा भवन का निर्माण हुआ जिसे देख करके पूरी दुनिया चकित रह जाती थी। लेकिन उस भवन में कहीं जल है तो कहीं थल है, इस तरह का अनुभूति होती थी।
और उसमें दुर्योधन और सभी कुरु कौरव आए थे। द्रौपदी भवन के झरोखे से बैठकर दुर्योधन को आते हुए देख रही थी, और एक जगह एक प्रकरण में ऐसा आता है कि पानी को थल समझ करके दुर्योधन उसमें गिर जाता है, और उसको गिरता हुआ देख के द्रौपदी हंसती हैं और कहती हैं कि अंधे का बेटा अंधा। यह बात वो सुन लेता है और उसके मन में एक प्रतिशोध की भावना आ जाती है कि मैं द्रौपदी से किसी दिन अपने इस अपमान का बदला लूंगा। अब इस स्टेटमेंट को ही अगर हम कायदे से एनालाइज करें तो अंधे का बेटा अंधा कहना क्या जरूरी था? एक वाणी दोष था, और वाणी दोष बड़ा खतरनाक होता है, चाहे वो उस द्वापर काल में हुआ हो चाहे आज के इस युग में हुआ हो। वाणी दोष से ही बहुत दोष उत्पन्न होता है। और कहते हैं महाभारत पूरा इस एक बात के कारण हो गया कि द्रौपदी का जो वचन अंधे का बेटा अंधा। इसके दूसरे पक्ष में जाएं तो अगर कोई आदमी संभ्रांत हो, कुशल हो और उसके मन में विकार न हो तो इस घटना को सामान्य रूप से ले सकता है कि क्या किसी के अंधे करने से मैं अंधा हो जाता हूं? लेकिन दुर्योधन के अंदर प्रतिशोध की भावना बड़े भयानक तौर से थी। उसके पीछे के भी तमाम कारण थे। बचपन से ही प्रतिस्पर्धा की एक एक्सट्रीम भावना दोनों परिवारों के बच्चों में थी। विशेष करके भीम और दुर्योधन बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा की भावना थी। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन की भावना। आज के इस वर्तमान युग में भी हम देखते हैं बच्चों में बड़ा ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी एक कंपटीशन के थ्रू आईआईटी में सिलेक्ट होके आए हैं, तो प्रतिस्पर्धा अच्छी भी होती है। आप लोगों ने भी उस प्रतिस्पर्धा में अगर जगह बनाई है तो अपनी योग्यता के आधार पर बनाई है। लेकिन उसके कारण कोई आपसे न्वेष हो जाए, आपसे ईर्ष्यालु हो जाए, तो एक दूसरी समस्या है और उसकी समस्या है। लेकिन इस भावना के बाद जो बदले की भावना उभरती है प्रतिशोध की, वो बड़ी भयानक होती है। द्रौपदी भी यहाँ पे दोषी मानी जाएगी मेरे विचार से। अगर हम उसका मूल्यांकन करें तो उसने दुर्योधन को नहीं, उनके पिता को भी एक तरह से अंधापन होने की गाली दी थी, जो कि वस्तुतः उसके ससुर थे, उसके ससुर के सगे बड़े भाई थे। तो अगर इस भावना को देखें तो परिवारों में जो विघटन होता है उसमें वाणी दोष का बड़ा प्रमुख स्थान रहता है। तो अपमान का बदला लेना, प्रतिशोध की भावना बड़ी खतरनाक है। दूसरा, वाणी दोष उसको और एग्जेजरेट कर देता है और बड़ा ही विशाल बना देता है। इन दोनों संदर्भों को देखें तो ये महाभारत के मूल में बातें आई जिसके वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। और तमाम इतिहास को अगर हम आगे फैलाएं और देखें तो जो जुआ वाला प्रकरण कराया गया, जिसमें कि मामा शकुनी की बड़ी भूमिका रही और युधिष्ठिर को जुआ में परास्त करके द्रौपदी को दांव पे लगा करके पूरा राजपाट छीन करके उनको परास्त करने के बाद उनको 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिला करके उनको राज्य से वंचित करा दिया गया। और फिर द्रौपदी का चीरहरण हुआ, जिसमें कर्ण ने उनको वेश्या तक कहा, और दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करने लगा। वहां भगवान कृष्ण साड़ी रूप में आकर के उनका साड़ी अवतार हो गया और उन्होंने सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, किसी कवि ने कहा। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया
और उस राज दरबार में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य और राजा ग्रुप में धृतराष्ट्र जो अंधे थे वो स्वयं बैठे हुए थे, विदुर जी बैठे हुए थे, किसी ने विरोध नहीं किया। दुर्योधन की भाभी थी वो द्रौपदी, युधिष्ठिर बड़े थे उनसे, और अपनी भाभी को उसने अपमानित किया और उनको अपने जंघे पे बैठाया, जो कि किसी भी समाज में विशेषकर भारतीय समाज में एक बड़ा ही अपमानजनक घटना के रूप में ये कार्य हुआ, जिसकी परिणति महाभारत के युद्ध के रूप में अंतोगत्वा हुई। बीच की भी तमाम घटनाएं हुई हैं, उस पर अगर हम ध्यान दें और उस पर प्रकाश डालें तो हम ये पाते हैं कि भगवान कृष्ण ने भी युद्ध को रोकने के प्रयास किए। हालांकि द्रौपदी नहीं चाहती थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने युद्ध के प्रयास किए और अंत में वो 5 गांव देने का प्रस्ताव लेके गए थे कि 5 गांव इन पांडवों को दे दो उनके जीने के लिए, तो युद्ध ये रुक जाएगा, हम लोग इस पे समझौता करा सकते हैं। किंतु दुर्योधन ने कहा सुई की नोक के बराबर भी जमीन हम नहीं देंगे, आप 5 गांव देने की बात कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण को भी बड़ा अपमानित किया। कृष्ण दुखी होकर चलने वाले थे तो उसने कहा आप दोपहर का भोजन कहाँ करेंगे? उसने कहा भोजन की व्यवस्था मेरी है, कहाँ चलिए मेरे घर भोजन किए। भगवान ने मना कर दिया कि भोजन उसी के यहाँ किया जाता है जिसके यहाँ की हमारा मन होता है। तुम भले ही राज दरबार में हो और राज्य के प्रमुख हो, लेकिन वो बिना बताए भोजन के लिए विदुर जी के घर गए और विदुरानी के हाथ से केले का छिलका खाते रहे। हमारे स्नेह के, हमारे प्यार के वो केला छिल छिल के केला नीचे गिरा दे रही थी और केले का छिलका खिला रही थी। किसी कवि ने लिखा यहाँ पे कि दुर्योधन का मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, ऐसी ऊंची प्रेम सगाई। अंतोगत्वा 5 गांव की बात नहीं हुई, सूजी के नोक के बराबर जमीन देने की बात भी नहीं हुई। बात हुई जिसको अस्वीकार करने के बाद युद्ध की भूमिका बन गई, और युद्ध की भूमिका का ये हर्ष रहा कि सारे कौरव मारे गए, पांडव के 5 पुत्र मारे गए। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जो सुभद्रा पुत्र था, जिसके की मामा, सगे मामा भगवान कृष्ण थे, वो अभिमन्यु मारा गया। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, गर्भ में भी अश्वत्थामा ने प्रहार कर दिया और किसी तरह से भगवान ने उनकी रक्षा की। तो ये परीक्षित जी पैदा हुए, जिससे कि पूरी कौरव पांडवों की ये वंश परंपरा आगे चली। बाद में परीक्षित बड़े प्रतापशाली राजा हुए और परीक्षित के ही अंत में जब परीक्षित का अंत हुआ, उस अंत की भी एक कहानी है, लेकिन कलयुग का फिर वो आरंभ हो चुका था। परीक्षित के जाने के साथ ही द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का युग प्रारंभ हुआ। आज से करीब 5200 साल पहले के आसपास की ये घटनाएं हैं। तो राजा परीक्षित का भी अंत किस तरह से हुआ वो भी एक बड़ी कहानी है। परीक्षित जी कलयुग का प्रवेश होने के बाद सोना में, जुआ में, वेश्यावृत्ति में और शराब में, ये 4 जगह कलयुग को रहने का स्थान दे चुके थे राजा परीक्षित ही, कि मेरे राज्य में तुम इन्हीं 4 जगहों में रहोगे, और खुद सोने का मुकुट धारण करते थे। तो कलयुग का प्रवेश उनके सिर पे हो चुका था। एक दिन जंगल में वो प्यास से व्याकुल होकर के घूम रहे थे। एक साधना वेश में ऋषि बैठे थे जिनका की नाम सिंगी ऋषि था। उन्होंने उनसे कहा कि महाराज जी मेरे को जल पिलाइए, और सिंगी ऋषि तो
साधना में थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनकी साधना नहीं टूटी। तुम्हारे क्रोध में आकर के उन्होंने एक मरा हुआ सर्प उनके गले में पहना दिया और गए वापस। सिंगी ऋषि के पुत्र बड़े प्रतापी थे। ऋषि पुत्र उस जमाने में बड़े प्रतापी हुआ करते थे। उनकी वाणी में सत्य और ओज होता है था। तपस्या का बल बहुत अच्छा होता था। और आप जनमानस में भी आया है, तप बल विप्र सदा बरियारा। वो आए और देखा कि उनके पिताजी के गर्दन में मरा हुआ सांप किसी ने लपेट दिया है। तो उन्होंने क्रोध में आकर कहा कि आज के 7वें दिन सांपों का राजा तक्षक, जिस व्यक्ति ने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप लपेटा है, उसको काट लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। कुछ देर बाद जब ऋषि की तंद्रा टूटी, साधना टूटी, तो उन्होंने देखा कि भीड़ इकट्ठी हुई है। उन्होंने कारण पूछा तो बताया गया किसने सांप डाला, ये भी पता चला। उनको बड़ा कष्ट हुआ। अरे वो तो बड़े अच्छे, बड़े ही संस्कारी, बड़े ही उदार, बड़े महामानव किस्म के राजा थे। अपने बेटे को तुमने उनको क्यों श्राप दे दिया? तो बालक बोला श्राप तो दे दिया, अब श्राप तो श्राप, तो श्राप की परिणति हुई। और 7वें दिन सारे उपायों के बावजूद भी वो सांप फूलों में आकर के राजा को डस लिया और उनकी मृत्यु हुई। उसके पहले उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की पूरी कथा सुनी थी, जो कि आज भी लोगों के जीवन में तमाम तरह के जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का समाधान श्रीमद् भागवत महापुराण उन्होंने सुखदेव जी से सुनी थी। सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र के रूप में अत्यंत ज्ञानी महापुरुष थे, उनसे उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी थी। अंतो गत्वा ऋषि पुत्र के श्राप से उनका भी इस जगत से अवसान हुआ, वो चले गए। महाराजा परीक्षित के पुत्र के रूप में जन्मेजय आए और आगे कहानी बड़ी लंबा स्वरूप लेती है। तो हमारी चर्चा के जो 3 मूल मुद्दे, पहला महाभारत का युद्ध का आत्मान था, अपमान का और प्रतिशोध, अपमान का बदला लेने की भावना, प्रतिशोध। दूसरा वाणी दोष। तीसरा किसी भी स्थिति में हम समझौतावादी नहीं हैं। 5 गांव मांगने पे भी हम नहीं तैयार हैं। अगर वो 5 गांव दे दिया होता तो शायद इतना भयानक युद्ध नहीं होता। उस जमाने का युद्ध महाभारत आज के विश्व युद्ध के बराबर है। आज विश्व की जनसंख्या 800 करोड़ है, लेकिन उस समय की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो महाभारत का युद्ध 2 भाइयों के परिवार के युद्ध में पूरा भारत इकट्ठा हुआ था। और उस समय का भारत आज के भारत से बृहत्तर भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, बर्मा, इधर पूरा श्रीलंका, उधर थाईलैंड, ये सब पूरा बृहत्तर भारत का एक अंग हुआ करता था। यानी पूरा दक्षिण पूर्व एशिया महाद्वीप आज का भारत था। उसमें इतना विशाल युद्ध हुआ था, तो एक विश्व युद्ध ही था। आज के युग में 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं और तीसरे की भूमिका लगभग तैयार है, रोज युद्ध हो रहा है। तो युद्ध के पीछे जो मूल कारण होते हैं, राज्य की वासना, संसाधनों पर अपना अधिकार जमाने की चेष्टा। तो महाभारत युद्ध के जो सबक हैं वो आज भी सीखने लायक हैं। क्या हम महाभारत के इस विशाल युद्ध से कोई सबक लेना चाहते हैं और नहीं ले रहे हैं तो इसका परिणाम कितना घातक हो रहा है? अंततोगत्वा गीता के रूप में जो उपदेश आया, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, युद्ध में खड़े हुए भाई बंधुओं को देख के अर्जुन के हाथ पांव फूलने लगे थे। उनको उन्होंने जीवन के रहस्य को समझाया। गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोकों में
कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के रूप में भगवान ने जो अर्जुन की शिक्षाएं दी, तो महाभारत का ही एक अंग है। महाभारत के अंदर ही गीता का उपदेश ही है, और महाभारत के ही अंदर विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान विष्णु के जो सहस्त्र नाम है उसको भी भीष्म पितामह ने सरसैया में पड़े होकर के भगवान कृष्ण को सुनाया था। तो महाभारत एक अद्भुत महाकाव्य है जिसमें कुल 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं, और जिसमें है विष्णु सहस्त्र नाम है, जिसमें ही श्रीमद् भगवत गीता है। इसे 5वां वेद भी कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास ने इसकी रचना की थी, और कहते हैं माना गांव की पहाड़ियों में 2 गुफाएं आज भी हैं। मैंने भी देखा है, जिसमें कि गणेश जी लिखा करते थे और व्यास जी बोला करते थे। इस तरह से महाभारत की रचनाएं हुई हैं। महाभारत एक महाकाव्य ही नहीं, धर्म, दर्शन, अध्यात्म, ज्योतिष, इतिहास और तमाम विद्याओं का उसमें खान है, खजाना है। महाभारत से हमें जो प्रेरणा मिलती है वो यही मिलती है कि जीवन में प्रतिशोध की भावना का त्याग कर देना चाहिए, वाणी दोष नहीं होना चाहिए, और संतोषम परम सुखम, कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस। अगर हम अपने जीवन में कंटेंटमेंट रखें तो हमारे अंदर में खुशी रहेगी। लेकिन यहाँ ये बात नहीं है कि हम प्रयास करना छोड़ दें। प्रयास हमारा अच्छा होना चाहिए। हमें तमाम वैभव चाहिए, तमाम तरह के गैजेट चाहिए, तमाम तरह के साधन चाहिए, लेकिन आज के इस AI के युग में हमें मशीन से भी प्रतिस्पर्धा करनी है। तो अपने जीवन के यापन के जो उपाय हैं उसको हमें आज से ही देखना है। अभी ओरेकल ने आप लोगों को पता ही होगा कि 30,000 लोगों की छटनी की है। उसमें से शायद 12,000 से ज़्यादा भारतीय मूल के भी हैं, भारतीय लोग हैं। और भी पता नहीं क्यों इस वार की वजह से, जो वार चल रहा है, लोगों के जॉब जा रहे हैं, व्यापार में दिनों दिन दिक्कतें आ रही हैं, और पूरा ग्लोबल सिनेरियो AI की वजह से भी हो रहा है, वार की वजह से भी हो रहा है। बड़ा ही चिंतामय है, जिससे हमारे युवाओं में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की भावनाएं हैं। इसलिए गीता आज के दिन में ज़्यादा प्रासंगिक हो गई है। तो गीता की प्रासंगिकता को ध्यान में रख करके अगर हम अपने जीवन की समस्याओं को ढूंढें गीता में, तो हमें ये आभास होता है कि ऐसी स्थितियाँ युद्ध की और ऐसी स्थितियाँ, सामाजिक स्थितियाँ आज से 5,000 साल पहले भी बनी थी। उस समय अर्जुन डीप डिप्रेशन में चले गए थे, ब्रेकडाउन हो गए थे, लेकिन गीता के संदेश ने ब्रेकडाउन से जो ब्रेक थ्रू की एक ट्रांसफॉर्मेशन थी वो अर्जुन के जीवन में आई। आज के युग में, आज के परिवेश में हम देखें तो हम सब अर्जुन हैं, और भगवान के हम ही को संबोधित करते हुए पूरी बातें कर रहे हैं। तो गीता को अगर उस रूप में हम देखेंगे तो हमें कर्तव्यनिष्ठ होने की प्रेरणा मिलेगी, हमारे ज्ञान चक्षु खुलेंगे, और हम फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। युद्ध का मतलब कर्म क्षेत्र में पृष्ठ होना। युद्ध का मतलब भौतिक युद्ध नहीं, जैसा कि कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था, वैसा युद्ध नहीं। हमें अपने कर्म क्षेत्र में युद्ध करना है। जैसा कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो संजय वहां से फिर गीता का प्रारंभ होता है। तो आज के हमारे जीवन रूपी कुरुक्षेत्र में भी जो युद्ध चल रहा है,
हमारे मानस पटल पे जो युद्ध चल रहा है, हमारे अंदर जो तमाम शंकाएं विराजमान हैं, उसको भी भगवान कृष्ण संबोधित करते हैं। तो गीता सार्वभौमिक सत्य है, इटर्नल ट्रुथ है, और हमारे जीवन के तमाम रहस्यों का उद्घाटन है। अगर हम इस जीवन में परेशान हुए हैं तो उसका निदान हम गीता में ढूंढ करके अपने को सक्षम बना सकते हैं। तो महाभारत रूपी इस अमृत कलश से कुछ बूंदें 1,00,000 श्लोक में से 700 श्लोक में जो ज्ञान की बातें हुई हैं, वो हमारे लिए बड़ी ही रिलेवेंट है। आप लोगों को संबोधित करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि भारत के युवा पीढ़ी को अगर गीता पढ़ाया जाए तो वो जीवन की अपनी समस्याओं से नहीं भागेंगे, बल्कि उनसे मुकाबला करेंगे और मुकाबला करके उस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। गीता हमें प्लानवादी नहीं बताती, गीता हमें कर्मवादी बनाती है। इसमें ज्ञान योग है, इसमें कर्म योग है, इसमें भक्ति योग है। पहले 6 अध्याय में हमें कर्मयोग मिलता है, बाकी 6 अध्याय में हमें भक्ति योग मिलता है, और आखिरी 6 अध्याय में 13वें से 18वें हमें ज्ञान योग मिलता है। कर्मयोग में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फिर आखिर में अध्याय 18 के 66वें श्लोक में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्थात सभी धर्मों को त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। फिर गीता के बीच में ही वो कहते हैं 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में अनन्या हिष्यन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरे अनन्य भक्त हैं, मैं उनके योग और क्षेम का धारण करता हूँ। योग का मतलब जो आपके पास प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करना। क्षेम का मतलब जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। तो शरणागति ईश्वर की होनी चाहिए। ईश्वर सब जगह विराजमान है और वही हमसे हम आप सबको कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। ईश्वर की प्रेरणा को अगर स्वीकार करेंगे तो आपका जीवन सुखमय बनेगा। अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए योग की शरण में जाइए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन के भी उपाय गीता में बताए गए हैं। गीता के 6ठे अध्याय में एक एक विधि उसके बारे में बड़े विस्तार से समझाया गया है। तो आज के इस दिन हम लोग महाभारत के कारण, उन कारणों का कैसे निदान और आधुनिक परिवेश में कैसे वो हमारे लिए प्रासंगिक है, और उन्हीं से निकली हुई गीता कैसे हमें हमारे जीवन के रहस्यों को, हमारे जीवन की समस्याओं को, हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए किस तरह से हमें प्रेरणा देती है, कैसे हमें जीवन जीने के लिए वे ऑफ लाइफ बनाती है, वो महाभारत की घटनाएं और उनसे निकली हुई गीता की शिक्षाएं हैं। आइए शिक्षा पे अमल करें, इसको जानें, इसको पहचानें। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। उन सारे श्लोकों का सार मैंने यहाँ संक्षेप में आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया है। आपसे मैं पुनः शेयर कर रहा हूँ कि मेरे में भी जो ट्रांसफॉर्मेशन आया वो इन ग्रंथों को पढ़ने के बाद ही आया। नहीं तो इस संसार में जब आप भ्रमजाल में पड़ जाएंगे तो आपको आगे पीछे कुछ नहीं दिखेगा। रोजगार हमारे ज़माने में उतना नहीं था, केवल सरकारी तंत्र में ही कुछ रोजगार थे, और हम लोग यूपीएससी की तैयारी में इस एक लाइन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
से प्रेरित होकर के दिन रात मेहनत करते हुए इस मुकाम तक पहुँचे हैं। आप सब भी अपने लक्ष्य में, अपने प्रयास में सफल होंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है। नमस्कार।